का नाम है सारनाथ। ये सारनाथ वाराणसी सिटी से 15 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है। वाराणसी आपका मेन सिटी है और वाराणसी आपका हिंदुज़म का प्लेस है। और ये सारनाथ क्या है, विलेज एरिया है और ये बुद्धिज़्म का थर्ड प्लेस है। बुद्ध के তো আমরা সারনাথ যাওয়ার টোটোতে উঠে গেছি। দাদার সাথে পরিচয় হলো একদম ঠিক গেট নাম্বার 4 এর বাইরেই। দাদার সাথে বার্গেন করে আমরা 250 টাকায় রাজি হয়েছে। দাদা 250 টাকা একদম সারনাথ অব্দি ছেড়ে দেবে। আমরা যেহেতু সময় কাটাবো ওখানে, আমাদের ভিডিও করারও আছে এবং ওখানে ঘুরেও দেখার আছে, তো তাই জন্য আমরা আলাদা করে ফেরার জন্য আমরা কন্ট্যাক্ট করিনি, আমরা শুধু গিয়ে ছেড়ে দেবো। সকাল সকাল বারাণসী শহর থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সারনাথের উদ্দেশ্যে। এই সারনাথ বৌদ্ধ ধর্মের একটি অতি প্রসিদ্ধ স্থান। তবে শুরুতেই বিপত্তি। টোটো চলতে শুরু না করতে করতেই হঠাৎ জ্যামে আটকে গেল। সেখানে এক সবজিওয়ালা ভাইয়ের বেশ কিছুটা কড়াইশুঁটি রাস্তায় পড়ে গেছে। আর কি, জেগে উঠল বাঙালি সত্তা। জায়গাটা বাংলা হোক বা উত্তরপ্রদেশ, কাউকে বিপদে পড়তে দেখলে বাঙালি পিছুপা হয় না। নেমে পড়ল ভাই প্রিয়াংশু সবজিওয়ালার সাথে সাথে হেল্প করার জন্য। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, আমরা রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছি যাচ্ছি। এর মাঝখানে একটা আমরা গল্প বলবো যেটা হচ্ছে আজকে সকালে। তো আজকে আমরা সকালে পুজো দেওয়ার জন্য বেরোনোর কথা ছিল ভোর 5টার সময়। তো স্বাভাবিকভাবেই ভোর 5টায় বেরোতে গেলে 4টে উঠতে হয়। তো আমার এই যে ভাই বসে আছে, মন্দির থেকে দূরেও আমাদের বেশ দূরে 15-20 মিনিট ডিস্টেন্স আছে। তো আমি সকালবেলা 4টের সময় অ্যালার্ম দিয়ে 4টের সময় উঠেছি। তারপর এই ভাইকে বললাম, ভাই তুমি উঠে পড়ো সকাল সকাল। ভাই আমায় বললো, হ্যাঁ আমি উঠে গেছি, তুমি যাও একটু ঘুমিয়ে না, আমি সব রেডি হয়ে আসছি। কাটটু 5টা 1 ঘন্টা পর আমি আবার উঠে দেখি ও ওখানে শুয়ে যাবে। কি রেডি তুই? আমি তো উঠিনি এখনো ঘুম থেকে। তুই ওই 4টে দিয়ে 5টার মাঝখানে কি করবি? ঘুমাচ্ছিলাম, ওই তো বলেছে। ট্রেনে শুভঙ্কর বলেছিল যে জন্মদিনের খাওয়াটা আমরা কালকে খাওয়াবো, ঠিক আছে? ওই কাল কিন্তু এখনো আসেনি। ইভেন একটা টাইমে বললো যে ওই তো কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই দেবো, কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্কসটাও আমাদের মধ্যে একটা অসভ্যতামি হয়েছে। এটা তো বলা যায় না, এটা একটা আমাদের প্রাইভেট বিষয়। তো খাওয়াচ্ছিস কবে? জন্মদিন অলরেডি চলে গেছে 2 তারিখ। কালকে 2 তারিখ কাল ছিল। হ্যাঁ, তো চলে গেছে, 24 ঘন্টা হয়ে গেছে। কি খাওয়াবি, কখন খাওয়াবি একটু প্লিজ লাইভ বল, টেলিকাস্টটা করি, তারপরে তো বলবি প্রমাণ। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে সন্ধ্যাবেলা খাবো। কি খাওয়াবি? কাশি চাট ভান্ডারের চাট শুনে নিয়েছেন তো? এবারে চাট ভান্ডারের চাট আসলে তো আপনারা দেখতেই পারবেন। তো সাথে থাকুন বন্ধু চলের সাথে, তাই তো? একদম। জয় কাশী বিশ্বনাথ কি জয়। হর হর মহাদেব। হর হর মহাদেব। আমরা সারনাথ চলে এসেছি। সারনাথ এসে একজন গাইড নিলাম। গাইড নেওয়াটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু হিস্টোরিক্যাল এত কিছু জায়গা আছে। 2300 বছর পুরনো একটা মূর্তি আছে, অশোক স্তম্ভ আছে। তো গাইড নিয়েছি আমরা, গাইড নিয়েই হেঁটে চলছি আমরা। আস্তে আস্তে দেখবো আমরা যে এখানে হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্সগুলো জায়গাগুলো। তো যে গাইড দাদার সাথে পরিচয় হয়েছে তিনিও বাঙালি, দেবাশিস মুখার্জি। তার নাম্বারও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো, কোথাও আপনারা দেখে নেবেন। আরেকটা জিনিস যেটা তথ্য দেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট, আমিও এত ইউটিউব ভিডিও দেখেছি বা যেটা পাই, সাইডে সারনাথে যে মিউজিয়ামটা থাকে, আর্কিওলজিক্যাল সাইটের যে মিউজিয়ামটা আছে একখানা, ওটা বন্ধ থাকে সাইডে। তো আপনারা যদি যখন আসবেন একটু দেখে আসবেন, তো সাইডে না আসবেন। अभी जिस प्लेस पे आप विजिट कर रहे हैं, ये जगह का नाम है सारनाथ। ये सारनाथ वाराणसी सिटी से 15 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है। वाराणसी आपका मेन सिटी है और वाराणसी आपका हिंदुज़म का प्लेस है। और ये सारनाथ क्या है, विलेज एरिया है और ये बुद्धिज़्म का थर्ड प्लेस है।
बुद्ध के 4 महत्वपूर्ण प्लेस, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में 4 होली प्लेसेस है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैसे बुद्धिज़्म रिलीजन में भी 4 होली प्लेसेस है। पहला है आपका नेपाल, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, कपिलवस्तु, इंडिया नेपाल बॉर्डर। सेकेंड प्लेस बोध गया बिहार, जहाँ बुद्ध ने 6 इयर्स मेडिटेशन किया पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बंगाली में आप अशोक तो गाछ भी बोल सकते। तो 6 साल उधर मेडिटेशन किया, उधर में उनको ज्ञान मिला। तो जो ज्ञान बुद्ध को बिहार में मिला, वही ज्ञान उन्होंने वाराणसी सारनाथ में दिया, इसी जगह पे। यहीं पे बुद्ध ने अपने धर्मों का पहला प्रवचन दिया अपना 5 स्टूडेंट्स के साथ, और वो 5 स्टूडेंट्स का नाम था महानामा, बप्पा, कुंदन, भद्या, अश्वति। तो जिस टाइम में बुद्ध ने वहाँ लेक्चर दिया, उस समय ऐसा विशाल स्तूप नहीं था। ये स्तूप बाद में सम्राट अशोक ने बनाया, आफ्टर कलिंगा वार। जो कलिंग युद्ध हुआ उड़ीसा धवलगिरी में, जो रक्तपात हुआ, तो ये सब देख के अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने जो पाप किया उसके प्रायश्चित के लिए पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध गए, वहाँ वहाँ सम्राट अशोक ने ऐसा बड़ा बड़ा स्तूपों का निर्माण कराया। पूरे भारत में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपा बनाया, 84,000 स्तूपा, जिसमें से ये एक। और ये 2300 ईयर्स ओल्ड है, 3rd सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट। और इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, ये चारों तरफ से ना पैक है। इसके अंदर में बुद्ध का रेलिक्स है, टीथ एंड बोन्स, हड्डी और दांत, और कुछ एशेस रख के उसको चारों तरफ से पैक करा दिया। तो स्तूप का जो मतलब है मेमोरी, मोनूमेंट्स के लिए बनाया जाता है, उसको आप समाधि का भी रूप बोल सकते हैं। और इसी स्तूप में नहीं, पूरे भारत में जितने भी स्तूप बने हैं, सभी स्तूपों में बुद्ध का कोई ना कोई अवशेष रखा गया। और इंडिया का पहला स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया था, सांची स्तूप, भोपाल, मध्य प्रदेश में। उसके अंदर बुद्ध का हेयर है, और इसके अंदर टीथ एंड बोन्स, और इसका हाइट है 103 फीट, 31 मीटर, और ऊपर का ब्रिक है और नीचे का स्टोन है, साइन स्टोन। और स्टोन पे देखिए जगह जगह पे डिज़ाइने बने हैं, और जगह जगह पे एकदम प्लेन वाला पत्थर। तो जो डिज़ाइन वाला है अशोका के टाइम का है। उसके बाद आपका मुगल टाइम आया, मुगल सम्राट औरंगजेब का समय, मोहम्मद गजनबी, उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा अशोका तो एक वॉरियर्स थे, राजा थे, तो इसके अंदर कुछ बहुमूल्य चीज़ें रखी होंगी। उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो जहाँ जहाँ डिस्ट्रॉय किया, वहाँ वहाँ आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयर के बाद ये प्लेन पत्थर लगाया, और जिधर जिधर नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते थे अभी तक वो नेचुरल। अच्छा। और इसका जो मेंटेनेंस है आर्कियोलॉजिकल करती है, ASI। और इसका बाहर से प्रदक्षिणा करने के लिए इंडियन का 20 रुपीज़ टिकट है, और फॉरेनर्स का 250 रुपीज़। और इसका नाम है धामेक स्तूपा, धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप, शॉर्ट नेम धामेक स्तूपा। धामेक का जो मतलब है वो रिलीजन, और स्तूप का मतलब है मेमोरी। तो ये बुद्धिस्ट मेमोरी के लिए बनाया। और इस जगह पे बुद्धा 3 महीना स्टे किया, रेनिंग सीजन, वर्षा काल में 3 महीना इधर वो रुके। तो सबसे कम समय बुद्ध ने यहीं दिया था, सारनाथ, वाराणसी। और यहाँ से बुद्ध गए कुशीनगर, वाराणसी टू कुशीनगर 300 किलोमीटर नियर टू गोरखपुर। वहीं पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा, और 27 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना घर परिवार त्यागा, और 35 साल की उम्र में बुद्ध को ज्ञान मिला। तो बुद्ध ने मात्र 6 साल मेडिटेशन किया, और सबसे ज़्यादा ज्ञान, सबसे ज़्यादा इनलाइटमेंट उनको 28 डेज में हुआ, 28 दिनों में सबसे ज़्यादा उनको ज्ञान मिला। और दिगंबरी जैन टेम्पल, तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है ना समकालीन, थोड़ा बहुत अंतर है। तो जैनिज़्म में 2 समुदाय हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या है, वाइट क्लॉथ पहनते हैं और कवर, अपने माउथ को हमेशा कवर करते हैं। और दिगंबरी जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेकेड, वो कपड़े यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्टली नेकेड नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ऑफ 2 क्लॉथ, देन आफ्टर 1 क्लॉथ, देन आफ्टर 2 द नेकेड। उसके बाद वो निर्वाण की प्रैक्टिस करते हैं। निर्वाण का क्या मतलब है, कम्प्लीटली फ्रीडम। अच्छे कर्म करेंगे निर्वाण की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे रिबाइंड, लॉट ऑफ इनकार्नेशन, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा। और दिगंबरी जो धर्म है ये बहुत ही टफ है, सभी धर्मों से सबसे कठिन जो रिलीजन है ये जैनिज़्म, दिगंबरी जैन। क्योंकि जैन जो है, दिगंबरी जैन, वो नहाते नहीं, नेवर शावर नहीं करते। वो छोटे छोटे जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया ना मर जाएंगे, शावर करेंगे। 1 साइड स्लीप करते, आफ्टर सनसाइड ईटिंग नहीं करते, शेव नहीं करते, प्लक आउट 1 by 1। तो वो बहुत कठिन। तो बुद्ध पहले जैनिज़्म को ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन उनको वो बहुत कठिन लगा। तो बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म। और जैनिज़्म क्या है, रिलीजन है, और बुद्धिज़्म क्या है, फिलोसफी, वे ऑफ लाइफ। बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं है, वो एक राह, उन्होंने एक राह दिखाया कि इस राह। तो
ये आपका मेन टेम्पल है सारनाथ का। ये ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट बनाया गया है, रेप्लिका। इसका जो ओरिजिनल जो टेम्पल था ना, वो स्तूपा के बैक साइड में, अच्छा। जो प्रेजेंट टाइम में आप विजिट नहीं कर सकते, जो डिस्ट्रॉय हो गया मुगल एम्पायर में। मुगल सम्राट औरंगजेब, मोहम्मद गजनबी, उस टाइम का वो टेम्पल था। उन्होंने वो पूरा टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी का ये रेप्लिका बनाया गया है। ये टेम्पल श्रीलंका कंट्री द्वारा बनाया गया, मेड बाय श्रीलंका 1931। अनागारिका धर्मपाल जी जो श्रीलंका के वर्ल्ड फाउंडर थे, तो उन्होंने पहले यहाँ पर आके महाबोधि सोसाइटी बनाई। ये पूरा एरिया का जो मेंटेनेंस है वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है, और महाबोधि सोसाइटी का हेड ब्रांच कोलकाता में, नियर बाई कॉलेज स्ट्रीट। मेरे घर के बगल में। जी, महाबोधि सोसाइटी का मेरे घर main पे branch बगल वहीं में। है। और ये टेम्पल 1931 का बनाया गया है। 90 ईयर्स ओल्ड ये मंदिर है, 90 साल पुराना। और 90 साल पहले ये पूरा टेम्पल ओनली 70,000 रुपीज़ में बनाया गया था, 70,000 रुपये मात्र। इस टेम्पल का नाम मूल गंध कुटीरा रखा गया। और ये टेम्पल का हाइट है 80 फीट 25 मीटर। और टेम्पल के अंदर में पूरा वॉल पेंटिंग्स बनाया गया, बुद्ध का जीवन चरित्र, बुद्ध ने अपने जीवन में जो जो किया वो अंदर पेंटिंग्स में बनाया गया। और उस पेंटिंग को बनाने में 4 साल का समय लगा, 4 ईयर्स। 1932 से लेकर 1936 तक जापान के आर्टिस्ट 2 भाई ने वो अंदर का पूरा पेंटिंग कंप्लीट किया। और अंदर में जो बुद्ध का प्रतिमा है वो एक पत्थर का है, सिंगल स्टोन का, और वो मार्बल स्टोन के ऊपर गोल्डन कलर किया गया। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में लाल रंग शुभ होता है ना, वैसे बुद्धिज़्म में गोल्डन कलर, येलो। किसी भी बुद्धिस्ट प्लेस में देखेंगे जो बुद्ध के जो स्टैचू होगा गोल्डन येलो कलर का होगा। और जिस स्टोन के ऊपर बुद्ध बैठे हैं उसके नीचे अंडरग्राउंड है, जहाँ चांदी के बॉक्स में बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई केमिकल द्वारा, जो साल में एक बार दर्शन कराया जाता है नवंबर महीने में। अभी ये बीच में निकाला गया था 6 नवंबर और 8 नवंबर, जो देव दीपावली पड़ती है ना, उस टाइम निकाला जाता है। और 3 दिन तक उसका दर्शन कराते हैं। और 27 कंट्री के बुद्धिस्ट लोग इधर आते हैं। 3 दिन तक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो साल में एक ही बार उसका दर्शन कराते हैं। और बुद्ध का दांत अभी भी आप देख सकते हैं श्रीलंका कैंडी टेम्पल में। अच्छा जी। और टेम्पल के अंदर अगर फोटोग्राफी करेंगे तो 20 रुपीज़ आपको डोनेशन बॉक्स में डालना पड़ेगा, और फोटो नहीं लेते हैं तो डालने की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे। जी। और टेम्पल के पीछे आपका बोधि वृक्ष पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था, उसी पेड़ का यहाँ पर तीसरी शाखा है, 3rd सैपलिंग। ओरिजिनल जो ट्री था वो बोध गया बिहार में, तो वहाँ से एक सैपलिंग काटा, अशोका डॉटर एंड सन चारा काटा, संघमित्रा और महेंद्र, और लोग गए श्रीलंका कोलंबो बुद्धिज़्म धर्म का प्रचार करने के लिए। तो श्रीलंका कोलंबो में एक विलेज एरिया है, वो जगह का नाम है अनुराधापुरा। तो उस जगह पे उन्होंने उस ट्री को प्लांट किया, वहाँ पर बुद्धिज़्म धर्म का प्रचार किया। और उधर से फिर अनागारिका धर्मपाल जी 1931 में इधर में प्लांट किया। तो ओरिजिनल पेड़ का ही वो तीसरी शाखा है। और अभी आप प्रेजेंट टाइम जाएंगे ना बिहार, बोध गया ओरिजिनल ट्री देखने के लिए, अभी ओरिजिनल ट्री नहीं है, ओरिजिनल ट्री डिस्ट्रॉय हो गया। अभी वो रीप्लांटेशन किया, श्रीलंका से सैपलिंग काट के फिर बोध गया बिहार में लगाया। अभी वो चौथी शाखा है, 4th जनरेशन। अच्छा। ऋषि पतन मृगता संस्कृत लैंग्वेज। मृगे যে মিন্সটা হবে ওটা হিরো এনিমাল, আর দাবে যে মিন্সটা হবে তো জঙ্গল। তো এটা পুরো ফরেস্ট এরিয়া হবে। তো ওই সময় প্রাচীনকালে বড় বড় যে হিন্দুজমে ঋষিমুনি তপস্যা করতে এখানে আসে। তো যা তারপরে যখন বুদ্ধ এখানটা নিজে স্পিচটা দিলেন, তখন দিয়ে জায়গাটার নাম সারনাথ। সার যে হবে তো স্পিচ, আর নাথ মিন্স গড, ভগবান। তো ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং এখানটা নিজে স্পিচটা দিলেন, এই জন্য এই জায়গাটার নাম সারনাথ। আর ওই সময় যে বুদ্ধ এই যেখানটা উপদেশটা দিয়েছিলেন ওটা পালি ল্যাঙ্গুয়েজ, পালি। ওই সময় পালি চলতো, সংস্কৃত অ্যান্ড পালি ইকুয়াল টু ম্যাথ। तो बुद्ध ने काफ़ी साल तक पहले बनियान ट्री के नीचे ही तपस्या किया। अच्छा। लेकिन उसके नीचे बुद्ध को ज्ञान नहीं मिला, तो बाद में बुद्ध ने 6 साल पीपल गाछ के नीचे तपस्या किया।
क्योंकि पीपल का जो गाछ है वो हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण। 33 कोटि देवी और देवता इसमें वास करता है और इसी के नीचे बुद्ध को बोधिसत्वों का ज्ञान हुआ, तभी से इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष है। और इस गाछ के नीचे देखिए 5 शिष्य का मॉडल बनाया गया है, काल्पनिक, क्योंकि बुद्ध ने तो उपदेश उधर दिया था ना, तो उस समय किसी ने देखा नहीं दादा कि बुद्ध ने किस मुद्रा किस पोजीशन में लेक्चर दिया। तो ये काल्पनिक मॉडल डोनेट किया है बर्मा कंट्री ने 1988 म्यांमार। पूरा एरिया थाईलैंड कंट्री के अंडर में, थाईलैंड कंट्री का अंदर है, मेंटेनेंस थाईलैंड। थाईलैंड कंट्री का। अच्छा, ये जगह खाली भारत सरकार ने दिया है दान में मंदिर बनाने के लिए, बाकी इसका पूरा मेंटेनेंस और आर्किटेक्ट का खर्च थाईलैंड का। और सामने जो बड़ा वाला बुद्धा देख रहे हैं वो बामियान बुद्धा का कॉपी है। ऐसा बड़ा बुद्धा ना अफगानिस्तान में था जो डिस्ट्रॉय हो गया, तालिबानियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया 2002। वो एक रॉक को काट के बनाया गया था, माउंटेन को काट के, गांधार शैली, तो उसको तोड़ने के बाद इधर बनाया गया। इधर 9 इंचेस 25 मीटर, और ये छोटे छोटे पत्थरों को ज्वाइंट किया गया, छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ा गया। 843 स्टोन इसमें ज्वाइंट है और वो स्टेचू 9 ईयर्स में बना है, 9 साल। 16 मार्च 2011 में उसका ओपनिंग किया गया और उसका ओपनिंग के लिए थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए। और ये आपका थाई टेम्पल है, ये 1964 का बनाया है, 1964 इसी जमीन पे। हाँ, मतलब ये जमीन 1964 से दे दिया गया था। दे दिया गया। और मंदिर के अंदर जो बुद्ध का प्रतिमा है उसका हाइट है 9.5 फीट और वो सिंगल स्टोन का, एक पत्थर का, कोई जॉइंट्स नहीं। ড্রাফট পেপার হয় হ্যাঁ, আর তারপরে এই যে ফটোগুলো দেখছেন এটা হচ্ছে আপনার ডিজাইন কার্ড। আচ্ছা, আর ওইটা যে মেন ইম্পর্টেন্ট যে ওইটা জাকার্ডটা কি আছে না, ডিজাইনটাকে কন্ট্রোল করে তারপরে ওইদিকে ওইটা দেখুন পায়ের কাছে ওনার পাইডিল আছে তো ওইটা দাবাচ্ছে, তো ওই যখন দাবাবে তো ওইটা গ্যাপ হয়ে যাবে, তো একটা সুতো হবে, একটা হবে জড়ি, একটা ওদিক দিয়ে ফেলবে, একটা ওদিক দিয়ে ফেলবে, তারপরে এটা টানবে। আর মেন ডিজাইনের ছাঁচ হলো এই যে ডট ডটগুলো, এগুলো ছাঁচ, তাই তো? এদিকে শাড়ি আপনার কলকাতারই তৈরি হচ্ছে, এমনি লাইট কালারের শাড়ি আর এই যে পুরো আছে এটা অর্ডারের সঙ্গে। রঙগুলো যে দেখছেন ভেজিটেবল কালার, এটা মূলো গাজর টমেটো কেটে পেস্ট করে ওইগুলো ডিজাইন করে বানানো। আর এই যে জরিগুলো দেখছেন এটা টেস্টের জরি, কালো হয় না, 30 বছর 35 বছর অমনি হয়। এটা দেখুন উল্টো, এদিকে সোজা। আচ্ছা, এই বেনারসির এটাই ওই একটা উল্টো একটা সিধা থাকে। আর যে মেশিন মেডে হবে তো এমনি 3 টাইপস লুম হয়, একটা হয় শাটার লুম যে এমনি এমনি করে চলে, ওর মধ্যে কটন আর খালি তৈরি হয়, একটা হয় পাওয়ার লুম, আর এটা হয় এখন বানানো জিনিস দেখো। যারা সান্নাতে আসবে তারা মানে আমরা এই দাদা গাইড দাদার সাথে ঘুরলাম, খুব ভালো ঘোরালেন দাদা। দাদা তোমার নামটা? দেবাশিস মুখার্জি। দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে নাম্বার নিয়ে দাদার সাথে ঘুরতে পারো। দাদা খুব সুন্দর করে ডেসক্রাইব করে পুরো সান্নাতের ট্যুরটা আমাদের করে দিলেন, যেটা আমরা খুব ভালো অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে আমরা পেয়েছি। আমরা এই সান্নাত ঘুরে বেরোলাম, গাইড দাদার সাথে মোটামুটি ভালোই ঘোরাঘুরি হলো। লাস্টে বেনারসির যে ফ্যাক্টরিটা আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওইখানে টুকটাক জিনিসপত্র দেখে কিভাবে কাজ হয়, কীভাবে বেনারসি শাড়ি তৈরি হয়, সেইগুলো দেখে আমরা এই টোটোতে উঠলাম। 200 টাকায় কথা হয়েছে, তার মানে আমরা আগের বার আসার সময় 300 টাকায় এসেছি, মানে আমরা ঠকেছি। তো একটুখানি দাম দর করে আসবেন, দাম দর হয় এখানে। আর এখন আমরা যাব হচ্ছে গাদোলিয়া চক। গাদোলিয়া চকে গিয়ে একটু শপিং করবো আর আশপাশটা ঘুরে দেখবো। দশাশ্বমেধ ঘাট আমাদের এখনও দেখা হয়নি, মণিকর্ণিকা ঘাট দেখা হয়নি, ওইগুলো দেখবো। আজকে বিকেলে দশাশ্বমেধ ঘাটে আরতি দেখার ইচ্ছা আছে।
তো ওইগুলো আসছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ দেখতে থাকুন বন্ধুচল। আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ, আনটিল নেক্সট টাইম। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी